is extremely easy to eat. Jamun is extremely easy to eat. So, Yes. Gajanana means why are these two fruits only told here? These two fruits are only told here because he can do the toughest of the tasks, he can do the easiest of the tasks, which means he can do anything in the middle also. Got it? So he can eat both, and there is a beauty when a elephant eats kite, right? The fruit is not broken. It will only take the essence from inside, and the hard shell will come out as is. So that's why Phala Sara Bhakshanam Uma Sutam, Uma Devi ke putra hain. So whoever, I mean, whichever god we worship, we always tend to associate them with their mother, because even in a sannyas ashrama, for example, अगर आप कोई शंकराचार्य को भी देख लीजिए, who is in one of the four Amnaya Pithas, who, so, see, once they take sannyas also, they are not supposed to prostrate in front of anyone. वे सिर्फ दंडवत प्रणाम वे सिर्फ दो लोगों को कर सकते हैं, एक होते हैं उनके गुरु, दूसरे होते हैं उनकी माँ. After sannyas also, you are supposed to go down to your mother whenever you see her. So that's why we again bring her the name of Uma here. Uma Sutam Shoka Vinasa Karanam. Now, how does Gajanana or Vinayaka remove Shoka? Shoka is sadness, right? Shok. How does he remove it? कैसे कर रहे हैं? शोक विनाश कारणम का यहाँ पे अर्थ ये है कि देखिए, whenever we start some activity, if we succeed in that activity, we get happiness. If we fail in that activity, we get sadness. And sadness is nothing but shok. So, in Sanskrit, shoka actually means grief in Sanskrit. So, shoka vinasa karanam. So, see, whenever your work, whatever work you want to finish on 18th May 2026, if you are able to finish it, when you go home and sleep, you will not feel sadness. You will not have grief. But imagine you wanted to accomplish something at the start of the day, and by the end of the day, it was not over. आप उसको प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाए उस काम को, तब आपको बहुत बुरा लगेगा, बहुत ग्रीफ आएगी, बहुत तकलीफ आएगी. एंड why does a work not complete? A work will not complete because कोई विघ्न आ गया, कोई बाधा आ गया बीच में. some You wanted to go and meet someone, suddenly that person got into an some different appointment. You wanted your document to be reviewed by someone, वो जो रिव्यू करने वाला था वो नहीं है घर. Or you wanted to prepare some very good meal at the house, all of a sudden the power outage has come, and your mixer grinder, nothing was working. So these are all out of your control. So if something is, whenever you are putting your 100%, मतलब आप अपने 100% दे रहे हैं, फिर भी वो काम हो नहीं रहा है, तो उसका मतलब है कि वो काम जो है उसमें कोई विघ्न आया है. एंड विघ्नहर्ता कौन है? गणेश जी हैं. इसीलिए सारे समस्त शोक, दुख और क्लेश तीनों को नाश कर सकते हैं वे, वो है विघ्नेश्वर. इसीलिए वहां पे, यहाँ पे विनायक का शब्द नहीं या गजानन का शब्द नहीं उपयोग हुआ है, गणेश का शब्द नहीं उपयोग हुआ है. नमामि विघ्नेश्वरा, मतलब ये विघ्नों के स्वामी हैं. विघ्नों के स्वामी हैं मतलब ये कभी कभी कुछ काम हमारे, देखिए, समटाइम्स some things not happening to us is good, to us is good. For example, somebody is taking us on a very wrong path, suddenly somebody comes and takes us out of it, or for some reason it doesn't work out that day, we will get saved. So sometimes विघ्न हमारे रास्ते में आए, उसी में हमारा श्रेय है. कभी कभी विघ्न हमारे रास्ते में ना आए, या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स विघ्न हमारे रास्ते में ना आए, तभी हमारे लिए श्रेय है. तो ये दोनों करके हमें श्रेय प्रदान करने वाले विघ्नेश्वर, उनके पाद पंकजम, उनके पंकज इज एक्चुअली व्हाट? लोटस. तो उनके चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूं. ये इस श्लोक का अर्थ है. मतलब गजानना, जो कि सारे भूत गणाधि सेवितम. अब देखिए,
ये भूतगणादि सेवितम का ही वर्ड क्यों यहाँ पे यूज किया गया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है हमें समझने के लिए। आप जब भी कोई पूजा स्टार्ट करते हैं तो पहले आपसे जो पुजारी जी आते हैं घर पे, वो आपसे आचमन कराते हैं। You must have known, you must have done that. After that, they will say one shloka. Uttishtantu bhuta pisachaha ete bhume bharakaha etesham avarodhena brahma karma samarabhe. This is a shloka which is recited in every beginning of every puja. Means ये जो भूत प्रेत और नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, they will be roaming freely around us only. And that's why whenever we do a puja in the house, particularly, this shloka is said. Now, but these Bhutaganas, they worship Vinayaka. So we are now praying to that Vinayaka, telling that आप हमारे रास्ते में कोई विघ्न ना आने दीजिए. Don't let any विघ्न come on my way. At the same time, tell all these Bhut Pret Pisachas to stay away from my good work. Okay, so this is the meaning of this shloka. So please try to by heart this shloka. Please try to teach this to your kids, grandkids, or niece, nephew, जो भी हैं. Please try to teach this to them. Also tell them the meaning. So Gajananam. Again, when we talk about elephant's face, they have small eyes, which means आपको सूक्ष्म दृष्टि से सब कुछ देखना होता है. They have huge ears, which means आपको बहुत ज्यादा सुनना होगा to go forward in life. And it has a huge trunk with which it will take essence from everywhere. So that's how the elephant's face is important for us. So whenever our rishis and munis write even one shloka, it has so much of meaning. So Gajananam Bhutaganadi Sevitam Kapitha Jambu. I told you Kapitha is wood apple. खाना बहुत मुश्किल है उसका, फिर भी एन एलिफेंट कैन टेक इट. जम्बू जामुन खाने में कोई तकलीफ नहीं होगा, फिर भी. So the Gajanana can handle the toughest of the tasks, the easiest of the tasks, and he'll take the Falasara from both. Uma Asutam. As I told, it's always important to pray the mother, praise the mother. Shoka Vinasha Karanam Namami Vigneshwara Pada Pankajam. So this is the meaning of the shloka. This is the shloka. So every day, even in this entire summer camp, yes, Sir, yes. one thing, can you please explain Pad Pankajam once again? The Pankaja is nothing but lotus. Yes. तो पाद पंकज का अर्थ होता है चरण कमल. सो वी नॉर्मली यूज, मैं उनके चरण कमल में अपना नमस्कार अर्पित करता हूँ. वी से दैट, राइट? सो दैट वाज टोल्ड इन वेरी नाइस वे इन दिस श्लोक. दैट्स ऑल. नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम. ओके, गॉट इट? Okay, so we'll now move to the so this is the shloka, this is the meaning. You can always come back to this video and refer to the meaning of this shloka. Now let us move on. So today I'll try to introduce the very basic concepts of Sanatana Dharma also to you. Okay, so what are the different names of Sanatana Dharma? अगर आप कहीं पे सनातन धर्म सुन रहे हैं, तो you know it is सनातन धर्म. आर्ष धर्म also means सनातन धर्म. भारतीय धर्म also means सनातन धर्म. वैदिक धर्म also means सनातन धर्म. All these are the names of Hinduism or Hindu Dharma also. Now I'll tell you the meaning of each of these words. Sanatana means what? देखिए, in इन दिस जम्बू द्वीपा, जो भारतवर्ष है, जो हमारा राष्ट्र है, यहाँ पे there was no word called mazhab or religion, because here mat in Hindi, you know, mat, right? Mat means an opinion. It was only an opinion that was previously there, but before that, the only word that was there was dharma. What is dharma? Dharanat dharma mityahu means
whatever is holding us together, okay, whatever is making us go ahead in life, जिसके सहारे हम चल रहे हैं, वो धर्म है. धारणात धर्म मिथ्याहु. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और धरती, जो कि जो हमें पकड़ती है, वो धर्म है. धरती इति धर्मः. ओके, सो तो इस धर्म के लिए बहुत सारे निर्वचन हैं हमें. मैं आपको एक सिंपल हाउ व्हाट इज होल्डिंग अस इसका एक सिंपल एग्जांपल बताऊं तो, यू इमेजिन अ रेलवे ट्रैक. इमेजिन अ रेलवे ट्रैक. तो the rails on जो नीचे रहते हैं, those rails are the one that are holding the train, right? The moment those rails are broken, the train will crash. Similarly, dharma holds us in our journey of life, because journey of life is never static. आप वो जड़ नहीं है ना. Life is not जड़ पदार्थ. It moves on. Life always moves on. So when life is moving on, see, if the rails are broken, train crashes. If dharma is broken in our life also crashes. You are seeing a lot of people who are going against and doing a lot of things, matlab, and which are not correct practices people are doing, and then 5 6 years down the line we see their lives crashing. Same is the case. So most importantly, we need to understand dharma means the one that is holding us together. Sanatana means eternal, one that is eternal, that is there forever, and that is holding us together. That is Sanatana Dharma. Okay, again. Now, what are the most important? I'll come to the words Arsha Dharma, Bharatiya Dharma, Vaidika Dharma also later. I'll explain these also. But okay, so otherwise I'll finish that first. So I told you what Sanatana Dharma is. Sanatana is eternal, जिसका कोई न आदि है न अंत है, वह सनातन है. वो था, वो है, वो रहेगा. It was there, it is there, it will be there forever. That is Sanatana Dharma. Why is it called Arsha Dharma? Arsha means something that belongs to a rishi. Something that belongs to a rishi is called as Arsha Dharma. Because rishis and munis gave this to us, it is Arsha Dharma. Bharata Dharma or Bharatiya Dharma, because it is related to the landmass called Bharata or Bharat, it is called as Bharata Dharma. Okay, again, um, a Hindu Dharma. Hindu Dharma is, that is a name given to us by the Westerners. पाश्चात्य लोगों के द्वारा दिया हुआ नाम है वो, because the entire knowledge base of India was called as Hindu. Or see, the river Sindhu was called Hindu. The people around it, they became Hindu. There is one meaning like this. Another word is all these Paschats, the entire knowledge base that is there for us, that was called as Hindu by those Westerners. So hence it is called Hindu Dharma. So hence, if someone is referring to Sanatana Dharma as Hindu Dharma, there is nothing wrong in it. Now, for any religion, there are some basic books जो हमें, जो हमारे what उसको क्या बोलते हैं, बेस लेवल पे होते हैं कुछ ग्रंथ, तो वो होते हैं. एंड सी, अभी हमें एक मूलतः जो डिफरेंस है अब्राहमिक रिलीजियंस और हिंदुइज्म के बीच में, उसे समझना होगा. अब्राहमिक रिलीजियंस में एक चीज होता है कि एक सारे लोग नॉर्मली जीते रहते हैं, एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है. मतलब आप क्रिश्चियनिटी को पकड़ते हैं तो कोई जीसस क्राइस्ट आता है, वो बोलता है कि मुझे भगवान ने भेजा है. भगवान की शब्द भी यूज नहीं करते, वो खुदा बोलते हैं. तो सिमिलरली मुस्लिम्स के लिए वो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, और वो बोलते हैं कि बिफोर देयर लाइफ
अलग है, आफ्टर देयर लाइफ द रिलीजन इज डिफरेंट, ऐसा होता है। बट हमारा यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान राम जी के अवतार स्वीकरण से पहले ही सनातन धर्म था। कृष्ण जी के अवतार स्वीकरण से पहले ही सनातन धर्म था। नृसिंह भगवान जी के अवतार प्रकटन से पहले ही सनातन धर्म था। तो ऐसा नहीं कि ये किसी ने आके शुरू किया, जो पहले से था ये वही है। अब इसमें हमें ये आधार ग्रंथ या मूल ग्रंथ क्या है, तो तीन पहले देयर आर थ्री बिग पिलर जिसे हमें समझना चाहिए यहाँ पे। पहला है ग्रंथ राशि, जो बहुत सारे ग्रंथ है, मैं बताता हूँ क्या है, जो हमें सेफ गार्ड करके रख रही है सनातन धर्म को। मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि यह सनातन धर्म क्या है। तो एक बड़ा पिलर हमारा है ग्रंथ राशि, दूसरा है हमारे तीर्थ क्षेत्र जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तीसरा है हमारे महात्मा लोग जो कि हमेशा आते रहते हैं और हमें सत्य की रास्ते पे जाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। ये तीन हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन हमारे तीन पिलर्स हैं। अब वो ग्रंथ राशि पे आ रहा हूं मैं। तो हमारे त्रयी बोलते हैं, तीन वेद हैं। अथर्वण वेद बाद में आया है। तो तीन वेद हैं, ऋक, यजुस, सामवेद। मतलब ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा। अथर्वण वेद हमारे हर दिन के जीने के लिए बहुत यूजफुल होता है। इट वाज एडेड, सो फोर टोटल हुआ है, फोर। तो फर्स्ट थिंग है हमारे, जब भी हम हमारे हिंदू ग्रंथ राशि को देखते हैं तो उसमें सबसे प्रथम चीज होती है वेद। उसके बाद 18 पुराण है हमारे, 18 पुराणास। ओके, तो 18 पुराणास। उसके बाद इतिहासास, दो है हमारे इतिहास, एक है श्रीमद् रामायण, दूसरा है श्री महाभारत। भागवत जी हमारे पुराणों में आ जाती है, 18 पुराणास में भागवत जी कवर हो जाती है। इसीलिए रामायण और महाभारत हमारे इतिहास है। उसके बाद हमारे मंत्र शास्त्र, मतलब आपको कुछ पाना है, मतलब देखिए, आपको बहुत धन की आवश्यकता है, तो आप एक मंत्र की पाठ करके, एक हवन करके, जो पैसा आप चाहते हैं उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसको काम्य कर्मा बोलते हैं। काम्य मीन्स यू डिजायरिंग समथिंग, सिर्फ वो काम वासना वाला चीज नहीं है। काम्य इज समथिंग यू डिजायर। तो काम्य कर्म कैसे करना है, इसको बताने वाला एक बहुत बड़ा शास्त्र है हमारे पास, जो है मंत्र शास्त्र। मतलब काम्य कर्म मतलब आपको पैसा चाहिए, आपको घर चाहिए, या कोई आप कोई नेगेटिव एनर्जी से आप पीड़ित हैं, या कोई पूर्व जन्म की में जो भी प्रॉब्लम हो गई थी, उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसको कैसे निकालें। तो इन सारी चीजों के लिए एक विस्तार रूप से एक मंत्र शास्त्र बनाया गया है। सिमिलरली भगवान को कैसा पूजना चाहिए, घर में है तो कैसा करना चाहिए, व्रत को कैसा करना चाहिए, मंदिर में पूजा करनी है तो कैसा करना चाहिए, आप गंगा जी नहाने जा रही हैं तो वहां पे संकल्प कैसे बोलना चाहिए। ये सारे चीजों को जो डिस्कस करती है उसको हम मंत्र शास्त्र बोलते हैं। ये बहुत बड़ा है। द वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट इज समथिंग यू जस्ट कांट इमेजिन। अब पांचवा है धर्मशास्त्र। ये धर्मशास्त्र मतलब क्या है, हमारे दैनंदिन जीवित में हमें कैसे जीना है, सुबह उठते ही हमें क्या करना है, माता पिताजी का सेवा कैसी करनी है, घर में कैसे हमें प्यूरिटी कैसे रखनी, बनाए रखनी है घर में, किस तरह से मुझे एक सेकंड दीजिए, आई हैव टू टेक दिस कॉल, प्लीज डोंट टेक अदरवाइज।
Sorry, I have to just send something. Let me just finish it. I'm really sorry. तो राम राम, सॉरी। तो कोई बात धर्मशास्त्र, नहीं है सर, मैं सुन रही हूँ। हाँ। आई एम वेरी सॉरी यार, कुछ करना नहीं था। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, बोलिए। हमें धर्मशास्त्र, तो ये होती है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र हमें बताती है कि हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, हर दिन अपना जीवन कैसे जिए, कितने बजे उठें, क्या कर्म करें। अगर और एक चीज है, धर्मशास्त्र हमें हमेशा देश काल पात्र के बाधित है। मतलब आप कहाँ पे रह रहे हैं, हमारे धर्मशास्त्र ऐसे नहीं है कि दे आर रिटन इन स्टोन। आपको अपने हिसाब से जो हो सकता है वो करना होता है। और कुछ देर आर समथिंग, मतलब सत्यम वदा, धर्मम चरा, देर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज वर्ड्स। मगर आपको अगर आपको देखिए, अगर धर्मशास्त्र की पद्धति से आपको घर में हर दिन आधा घंटा से 1 घंटे का पूजा करना है, पूजा पाठ करना है, तो आप कभी प्रवास में गए हैं, कहीं किसी और के घर गए, तो ये पूजा आपके लिए 1/10 पर आ जाता है। मतलब आप घर में 1 घंटे की पूजा कर रहे हैं, तो आप किसी और के घर में हैं, प्रवास में हैं, तो वो 1 घंटे का पूजा आपको 6 मिनट का पूजा हो जाता है। मगर आपको करना पड़ता है, क्योंकि विशुद्ध हम आपका हमारे पंच यज्ञ क्या होते हैं, उसे हमें कैसा करना है। वील डिस्कस ऑल ऑफ दोस। पंच यज्ञ क्या होते हैं, हर दिन क्या क्या करना है हमें, वील डिस्कस ऑल ऑफ दिस दैट इन डिटेल। बट हमें ये सब कुछ धर्म, ये सारे चीज हमें कहाँ मिलते हैं, धर्मशास्त्र में मिलते हैं। ये धर्मशास्त्र तो हमारे 5 ग्रंथ, ग्रंथ राशि में हमारे 5 ब्रॉड कैटेगरी से है। सॉरी, सो एक्चुअली मुझे कहीं जाना है, तो दैट गाय इज कॉलिंग मी कि आर यू कमिंग और नॉट। ओके, सो तो हमारे ग्रंथ राशि के 5 इंपॉर्टेंट चीजें, एक है वेद, दूसरा है पुराण, तीसरा है इतिहास। अगेन इतिहास का मतलब क्या है, इतिहासम, मतलब इट हैपेंड लाइक दिस, इति दिस वे, हा हुआ है, असम वो जो भी हुआ है वो ऐसा हुआ है। इसलिए रामायण और महाभारत काल्पनिक कथाएं नहीं है, दैट वाज क्लियर इतिहास, दैट वाज क्लियर हिस्ट्री दैट हैज हैपेंड। ओके, तो पुराण के भी 5 लक्षण होते हैं, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुकथनं चैव पुराणं पंचलक्षणम। तो आपको हर पुराण में आपको राजाओं का वंश के बारे में बताना होता है, टाइम के बारे में बताना होता है, लीनिएज में हर किंग के बारे में बताना होता है, हर वंश के बारे में पता, तो कौन से मनवंतर में हुआ है, कहाँ पे हुआ है, ये सब कुछ बताना होता है। इसलिए पुराण के 5 लक्षण होते हैं, वो मैं कल बताऊंगा आपको पुराण के लक्षण क्या क्या होने चाहिए। उसके बाद है मंत्र शास्त्र, जो मैंने आपको डिटेल में बताया क्या 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 होता है उसमें। आखिरा है धर्मशास्त्र। तो ये 5 है, और ये 5 टाइप के किताब ही हमारे हिंदू धर्म के आधारशिला है। व्हेन इट कम्स टू बुक्स, ग्रंथ राशि के ये हमारे आधारशिला है हिंदू धर्म के। अब हम यहाँ से, यू हैव एनी डाउट्स मैम टिल हियर, सोनिया जी? बोलिए। मैंने आई एम आस्किंग यू, डू यू हैव एनी डाउट्स? नहीं, तो हमारे 2 तरह के शास्त्र हैं क्या, कर्म शास्त्र और धर्म शास्त्र? मैंने धर्म शास्त्र और मंत्र शास्त्र, एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन दोस कैटेगरीज। मतलब मंत्र शास्त्र में दे विल गिव यू मंत्रास थ्रू व्हिच यू कैन, भगवान को देखने के लिए भी कैसा करना है वो भी मंत्र शास्त्र में आता है। धर्म अच्छा। शास्त्र, मंत्र शास्त्र इज टू गेट समथिंग इन योर लाइफ यूजिंग ए मंत्र। ओके, धर्म शास्त्र इज द वे ऑफ लाइफ, कितने बजे उठना है। मतलब देखिए, धर्मशास्त्र है, धर्म इज नॉट रिजिड। मतलब देखिए, इफ आई एम विथ माई पेरेंट्स, तो मेरा पुत्र धर्म है। इफ आई एम विथ माई डॉटर, मेरे दो दो पुत्रियां हैं मेरे को, तो इफ आई एम विथ माई डॉटर्स,
तो मेरा है पितृधर्म, राइट। अगर मैं अपने बॉस के पास हूँ, जो कि इस कॉल के बाद मुझे अपने ऑफिस काम में जाना है, तो वहां पे मेरे बॉस के पास मेरा सेवक धर्म है, क्योंकि आई एम एन एम्प्लॉई अंडर माई बॉस। माई बॉस इज अ चाइनीज लेडी, आई एम एन एम्प्लॉई अंडर हर। एम्प्लॉय का तो हमेशा सेवक धर्म होता है। अगर मान के चलिए, इफ आई एम बिसाइड माई वाइफ, तो मेरा है पति धर्म, राइट। इफ आई एम इफ आई एम नियर माई गुरु, मेरा है शिष्य धर्म। तो धर्म, इसलिए मैंने बोला धर्म हमेशा देश काल पात्र बाधित है। मीन्स वेयर आर यू स्टेइंग, हाउ आर यू स्टेइंग एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप, इसके रिलेटेडली धर्म का चेंज होता है। तो वो हम उस धर्म को कैसे निभाएं, हम कैसे जिए, कैसे खाएं, कैसे पिए, ये सब कुछ हमें धर्मशास्त्र बताते हैं। ओके। मतलब अच्छा। आपको आपके समुद्र स्नान करना है, तो समुद्र स्नान कब करना है, कैसे करना है। आपको गंगा स्नान करना है, तो कब, ऑन व्हाट डे यू शुड डू इट। वो एंड फॉर एग्जांपल, एक ऐसा रूल है कि यू शुड नेवर एंटर एनी रिवर विदाउट टेकिंग ए बाथ फर्स्ट। तो घर में ही बात करके जाना होता है रिवर में, वो धर्मशास्त्र बताती है हमें। और बाई मिस्टेक कभी हमसे गलती होगी तो प्रायश्चित कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ब्राह्मण है, तो उनके लिए, अगर वो ब्राह्मण लाइफ जी रहा है प्रॉपरली, या उसकी कामना करता है जैसे मैं हूं, तो हमारे लिए लहसुन प्याज वर्जित है। गलती से कहीं पे खा लिया, तो नेक्स्ट डे क्या करना है, झूठा खाना मना है। तो नेक्स्ट डे क्या करना है, अभी हुआ नहीं है, ऐसा नहीं कि बिकॉज आपने खा लिया आप नरक चले जाओगे। तो हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट डे उनके लिए प्रायश्चित क्या है, गायत्री मंत्र को ज्यादा जाप करो। ऐसा ऐसा फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण के लिए कुछ विधि विधियां बताई गई। मतलब एक है कि हर दिन अध्ययन करो, और जितना हो सके अध्यापन करो, और जो अध्यापन करते हैं उसका पैसा मत लो। तो ये सारी चीजें कहाँ लिखी रहती है, ये सारे चीजें लिखी रहती है धर्मशास्त्र में। मंत्रशास्त्र में क्या लिखा रहता है, मंत्रशास्त्र में लिखा रहता है, ठीक है, आपको धन पाना है, या आप एक राजा हैं और आपको शत्रुओं से बहुत मुश्किलें हो रही, तो एक मंत्र दिया जाता है, तो उसको इतने बार जाप करो, करवाओ किसी ब्राह्मण से। उसके बाद इतना मिर्ची ले आओ, और मिर्ची के साथ हवन करो। मिर्ची के साथ हवन करने से शत्रुनाश होता है। तो ऐसे ये सारी चीजें, मतलब नहीं, अगर कोई बोल रहा है मुझे मुझे जॉब चाहिए, मैं बहुत मुश्किलों में से गुजर रहा हूँ, मुझे जॉब चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है? कोई बिजनेस वाला मुझे पैसा चाहिए, उसके लिए क्या करना है? ये सारी चीजें जो बताती है, वो है मंत्र शास्त्र। धर्मशास्त्र है जो हमें जीने की मार्ग दिखाती है, वो वो होता है। अभी एनी अदर फर्दर डाउट्स? नहीं। ठीक है, देन वी विल मूव ऑन। हमें एक चीज यहाँ पे समझना है, वेद जो बोलते हैं उसी को पुराण बोलता है, उसी उसी को इतिहास में महापुरुष उसको जी के दिखाते हैं। इसीलिए भगवान राम जी के संदर्भ में एक श्लोक होता है, वेद वेद्ये परे पुंसी। मीन्स वेद में जो भी बताया गया है, अगर वो एक पुरुष रूप धारण करके हमारे पास आए, तो वही श्री रामचंद्र जी हैं। तो हमारे इतिहास में महापुरुषों ने जो वेदों में बताया गया है उसको कैसे जिए, कैसे दिखाएं, उसे दिखाने के लिए अवतार आए। इसीलिए वेद में जो बताया गया है वही पुराण में बहुत सरलता से बताई जाती है, इतिहास में और विस्तार से बताया जाता है। इसको हमें याद रखना है। इसीलिए याद रखिएगा, पुराण वेद दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें नहीं बोलती है। इतिहास, पुराण दोनों एक ही चीज, और वेद एक ही चीज पे कन्वर्ज होती हैं। और वेद के ही रिलेटेड जो होता है वही मंत्र शास्त्र है। इन सबको जो जो एक्सेप्ट करता है, वेद का सुप्रीमेसी जो एक्सेप्ट करता है, वही सनातन धर्म का फॉलोवर है। वेद पुराण तंत्र, इनका इसी जो भी यहाँ पे ये जो बिंदी लगाता है, तिलक लगाता है, वो एक एक एक्सेप्टेंस ये है कि मैं पुनर्जन्म को मान रहा हूँ। ये एक मीनिंग है, ये सब कुछ ये, दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। when you put a tilak, you are actually telling the world that I am accepting the supremacy of Vedas, I am accepting what is taught in Puranas, I am accepting the mantra shastra। इसीलिए जो हमें शास्त्र में बताया गया है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है।
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, यही बोला जाता है इवन भगवत गीता में, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, ये भी हमें समझना होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे आज रोकूंगा क्योंकि देयर इज ओनली वन पर्सन इन द ऑडियंस, because I really don't want to cover too much and make the others also feel that they have missed out too much just because they have not joined today's class. So I'll give back 10 minutes, Sonia ji, today to you. From tomorrow, what I'll do is I will start by 12, whether it's whatever is the audience, and we will try to and we'll try to do the whole 1 hour session from tomorrow. Okay? Hope that is ओके ओके okay. ओके, थैंक So, यू, लव द सेशन, बहुत अच्छा लगा मुझे। so if you know someone, please share the invite with them. कोई fees नहीं है. This is just knowledge sharing. You share it so that we all can join and we all can share knowledge. Okay? हाँ, नहीं, मुझे इसलिए भी इंटरेस्ट आया क्योंकि मैं यहाँ पे कलकत्ता में हूँ और मैं गुरुकुल की कक्षा लेती हूँ। Oh wow, wow. Wonderful, Sonia तो ji. हाँ, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत ही बच्चों को सिखाने के लिए लाभदायक होगा। सो हाँ, इट विल बेनिफिट द चिल्ड्रन बाय समथिंग। 100%, 100%, 100%. Yes. हाँ, क्योंकि मेरी समझ अगर थोड़ी ठीक होएगी तभी मैं बच्चों को सिखा सकूँ। जी जी जी, अगर आप, if you think somebody else is interested, like family members or anyone, or the other teachers of Gurukul, I also train Gurukul people on shlokas and everything. So if you uh, ask them to join, we can go ahead and do this. Okay? Jai श्योर Shri Ram. श्योर, आई विल डू दैट। To the जय Shanti, श्री राम, जय श्री राम। we'll close it with the Shanti mantra. हाँ, Sarve bhavantu sukhinah. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। Jai ॐ Shri Ram. शान्ति शान्ति शान्तिः।